हेलो। आप कैसे से थोड़ा प्रोग्राम करा ऑनलाइन ओके। Okay, now we are online and we are also streaming it on Facebook. We will just start now. To all the participants who are with us today on JK Scientists Zoom platform and also who have joined us live on our Facebook platform, I, on behalf of JK Scientists, welcome you all in today's session of our J&K Scientists Outreach 2020. Today, our third session is related to mental health. It's a series in particular. It will be we will be having around three series. In a first, we are having with us today Dr. Junaid Nabi. Dr. Junaid Nabi is a consultant psychiatrist at Government Medical College, Srinagar. We are also joined by Saima Beg. Saima is doing her research in clinical psychology at the University of Kashmir. Saima will be moderating this session, and Dr. Junaid will be with us for around 1.5 hours. We have some questions that have been asked by our participants before this session, and some of the questions will be asked by our participants through our Zoom platform and also through our JNK Scientists Facebook page. I will just like to tell this at the outset that JK Scientists has been organizing this outreach program since a couple of years, and this year we decided to do this outreach program offline concerning the pandemic we are facing. We had three different sessions. In fact, two different sessions before this one. First one was related to the Rhodes Fellowship. Second one was related to the UK fellowships for postgraduate students. Today's session is related to the mental health series. Saima will moderate the session. Saima, please go ahead. Thank you, Dr. Khalakul. Dr. Junaid Nabi, thank you so much for giving us time. Assalamu alaikum. So, are you able to hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I can. Okay. Yeah. Okay, so Dr. Junaid Nabi, thank you so much. And we all know that mental health disorders are complex, and even though there are separate diagnoses, there are many issues when it comes to the mental health disorders. The reality is that most of the disorders are interrelated, overlapping. Saima, I just want to interrupt you. I'm sorry. Please a bit louder. Okay, sure. Just a second. Okay, can you hear me clear now? Yeah, okay, now go ahead. Okay. So I want to tell our participants that if you or someone you know suffers from any sort of mental health disorders, don't rush to judgments. Collect as much as information as you can from the experts. Then when you collect that information, recognize and accept that there is a problem, and then go for the treatment of that person or your own self. Now, I won't take much of a time because we have got an expert with us. So, Dr. Junaid Nabi, let's start with the mental health actually. What is mental health? When we talk about physical health, there are clear distinctions. But when it comes to mental health, there isn't much available for the people to know. Thank you so much, Ms. Saima, for having me here. When we talk about mental health, see, it is a science in itself, and the importance we usually give to physical health, we just don't give so much of importance, and we neglect this mental health. And when we talk about mental health, always we go into a negativity, and we talk about the illnesses and disorders. जैसे इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन सी है, तो हमेशा इंसान को लगता है कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो डिसऑर्डर्स की बात होती है, मगर ये एक कॉन्टिन्यूअम है, ये एक मानो आइसबर्ग का एक टिप है जो डिसऑर्डर्स में आता है। मगर अगर हम इसकी पॉजिटिविटी में देखें तो उसमें हमारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जिसमें जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक इंसान का मेंटल मेकअप, उसका मानो किस घराने से आया है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेसर्स, उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट से वो आया है तो उसमें कितने सारे स्ट्रेसर्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक किस्म का कंटिन्यूअम है, तो उसमें जैसे बहुत सारे स्ट्रेसर्स की बात होती है,
पेशेंट जैसे कभी वरीड होता है, एंगर आउटबर्स्ट करता है, या दिल मलूल होता है, चुप करके बैठता है, तो ये नॉर्मल से एक्सप्रेशंस हैं। तो इसको हम डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक को गुस्सा आता है, हर एक चुप करके बैठता है जब कोई काम उससे नहीं हो पाता, या कभी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन जब ये चीजें एक इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डाले, जैसे वो स्कूल जाता है तो स्कूल नहीं जा पा रहा है अच्छे से, वहां पे ग्रेड्स में प्रॉब्लम्स हो गई, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो उसमें लॉस है, या कोई जो कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका आउटकम बहुत कम है, तो वो चीजें जब होती है तो उस टाइम वन हैज टू कम एंड सीक हेल्प एंड ट्रीटमेंट। जैसे मेंटल हेल्थ की जब हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वरीइंग फैक्टर होता है कि इसके साथ रिलेटेड स्टिग्मा, कि जब भी किसी को लगता है कि मेंटल हेल्थ की बात होती है तो वो डर जाता है कि मेरे को एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा मेरे को एक टैग लग जाएगा कि ये पागल है, यू शुड पागल, मानो ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ब ना, एक वर्ड है एक इंसान के साथ, तो एक स्टिग्मा बहुत ज्यादा इसके साथ रिलेटेड है। दूसरा चीज है हमारी नॉलेज अबाउट मेंटल हेल्थ वो भी बहुत कम है। तीसरा चीज है कि एक इंसान को पता नहीं है कि कैसे ट्रीटमेंट सीख करें, मानो कैसे एक डॉक्टर के पास जाना है। यूजुअली मैं आगे बताऊंगा, जैसे मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात की, मैं थोड़ा इसमें एलॉबरेट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को बहुत ना डिटरेंट फैक्टर है, एक इंसान जब ट्रीटमेंट सीख नहीं करता है तो उसमें है कि वो पेशेंट फियर करता है, डर जाता है कि अगर मैंने एक बार डिस्क्लोज किया कि मेरे को ऐसी तकलीफ है तो मेरे को फिर नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली भी नेग्लेक्ट कर सकती है, मेरे फ्रेंड्स में भी मैं नेग्लेक्ट हो जाऊंगा, और मेरे नेबर्स में भी मैं नेग्लेक्ट हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा कैस्केड बन जाता है, मानो एक वैल्कनो जैसा बन जाता है कि जिसके बहुत चांसेस होते हैं कि एक बार वो इरप्ट हुआ तो जो भी ये इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आपने बात की एंजाइटी और डिप्रेशन की, तो जैसे एक कॉमन सा है कि हर कोई यूज करता है कि एंजाइटी डिप्रेशन। जी जी जी। तो क्या फर्क है एंजाइटी और डिप्रेशन में? बिकॉज है नहीं, हमें पता नहीं है टर्मिनोलॉजी, हम किसी को भी देखते हैं अचमाना डिप्रेशन। हाँ बराबर। तो जी हाँ। ये जब भी मानो जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में या मैं अपने हॉस्पिटल में जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो पेशेंट वहीं से बोलता है मुझे कि मैं डिप्रेशन या मैं बेकरारी, मैं बेचैनी। तो मगर यूजुअली ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है जो मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करूंगा। पहले अगर हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी का क्या होता है कि इसमें दो चीजें आती है, एक होते हैं जो जहन पे जो उसके असरात पड़ेंगे, और जो फिजिकल जो हमारी बॉडी पे असरात पड़े। जो जहन और जो हमारा जिस्मानी पे जब असर पड़ता है तो काफी चीजें होती है। जब एंजाइटी होती है यूजुअली चोकिंग होती है, इंसान को लगता है कि जैसे उसका गला दबाया गया, या कशिर पुचिस वनान सु मे छु जन सीनस पे बासान दम हूँ। दूसरी चीज है उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तीसरा है पूरे जिस्म में थरथराहट जैसी होती है, जिस्म में पूरे जिस्म में पसीना आता है, उसको डर लगता है कि पता नहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और बहुत ही मानो जो मिसडायग्नोज होता है, जो यूजुअली जो ऐसे पेशेंट्स पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनको चेस्ट में पेन हुआ तो उनको लगता है कि बस मेरा हार्ट अटैक का पूरा खतरा है, या जब भी कोई डिस्कम्फर्ट हुआ, चेस्ट पेन हुआ, तो उनको लगता है कि ये हार्ट रिलेटेड है। मगर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि ये हमेशा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस अपने आप को कैसे दिखाता है कि यही चीज है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की। और कभी कभी मानो मसल वीकनेस या मसल टाइटनेस की वजह से भी हमें एंजाइटी पता चल जाती है। कभी एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसकी वजह से भी ये भी कोई सिम्टम्स है जो एंजाइटी में पाए जाते हैं। जो मैंने आपको कॉग्निटिव बोला, तो यूजुअली पेशेंट हमेशा रेस्टलेस रहता है, डरा हुआ रहता है कि मुझे ये अटैक तो नहीं आया, जिसको हम बहुत ही ना सबको पता होगा पैनिक अटैक्स जिसको हम बोलते हैं, कि इंसान को लगता है कि बस मैं मर जाऊंगा। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें सिम्टम होता है
वो एक इंसान छुप करके बैठता है, जिन चीजों में इसको मन लगता है, खुशी होती है, उसमें वो उतने मजे नहीं ले पाता है। मानो जो भी एनवायरनमेंट में जो भी खुशी होती है तो वो बड़ा छुप छुप के बैठा होता है, अलग बैठता है, नींद में खलल हो जाती है, होपलेस हेल्पलेस उसको लगता है कि मेरे को कोई मदद नहीं कर सकता है, अगर मैं जिंदा रहा भी तो मेरी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है। और जब ये सीवियर कंडीशन में आता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती है कि एक इंसान चाहता है कि मैं मर जाऊं और कोशिश भी करता है। तो जब ऐसी चीजें होती है तो पेशेंट को एट एट द वेरी ऑनसेट एक डॉक्टर के पास लेके कंसल्ट कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, क्या ये कभी कभी दोनों एक ही पेशेंट में हो सकते हैं? जी, हो सकती हैं। और यूजुअली जैसे मैंने आपको ये बोला ना कि एक डिप्रेशन में छुप करके बैठता है, दिल मलोर रहता है, नींद में खलल हो जाती है, एंजाइटी में बेकरारी रहती है, बेचैनी रहती है, छाती में दर्द होता है, तो ये हमेशा ये मिक्स करके ही ये सिम्टम्स आते हैं। तो फिर हमें डिलिनेट करना पड़ता है कि एक इंसान को ज्यादा परेशानी डिप्रेशन की वजह से है या एंजाइटी की वजह से है, ताकि उसको इमीडिएट रिलीफ मिले और वो बेटर कंप्लायंस रहे। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान के साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से ऑनसेट हो जाता है डिप्रेशन का या फिर एंजाइटी का। तो क्या ये हमेशा जरूरी होता है कि कोई इवेंट होना चाहिए, कोई ट्रॉमा होना चाहिए? क्या ये हमेशा होता है कि इसका कोई एक बैकग्राउंड होता है, कि ऐसा तो जी, नहीं है कि उसमें ऑलरेडी कोई ऐसी टेंडेंसी है, प्रीडिस्पोजिशन है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। एक जो पर्सनैलिटी होती है एक इंसान की, वो बाय बर्थ होती है। जैसे अगर हम दो भाई बहन को भी ले तो वो उनमें भी बहुत सारे चेंजेस मानो डिफरेंसेस होते हैं। एक बड़ा ही मानो सेंसिटिव बहुत कोई होता है, दूसरा बड़ा ही ना केयरलेस तरीके से ना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो जो सेंसिटिव ज्यादा होता है तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है ये डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स में मुब्तला होने की। और जो थोड़ा सा वो दूसरे तरीके का पर्सनैलिटी होती है, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है, जो दिल पे हर एक चीज नहीं लेता है, बड़ा ही ना स्टबॉर्न या थोड़ा सा माना बड़ा चिलबुला तरीके का होता है, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। जी तो आपने अभी बात की कि अपब्रिंगिंग की बात होती है, तो नेचर और नर्चर की बात आ जाती है। जी तो कितना रिस्पॉन्सिबल होती है एक फैमिली भी इस, मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है खुदा ना खास्ता, तो हमने अक्सर बहुत रिसेंटली भी सॉ केसेस कि सुसाइड कर लिया, तो फिर पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि ऐसे उसने पाई कि ना कोई वार्न। तो क्या वार्निंग यूजुअली होती है सुसाइड से पहले? देखिए जी, जो यूजुअली क्या होता है कि जिस घराने से एक इंसान आता है, मेरा मानना है और जो भी हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो स्कूल बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट पहला वाला स्कूल होता है वो घर होता है। और घर में जो सबसे दो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, फादर और मदर। जैसा माहौल एक घर में हो, जैसे अगर पेरेंट्स की कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, जब बच्चा वो हुई रिलेशनशिप हमेशा देखता है, जैसे वो अपने पेरेंट्स को खुशी खुशी देखे, मानो हमेशा खुश तरीके से देखे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो उसका मेंटल मेकअप भी वैसा ही बनता है कि उसको भी पता चलता है कि इंपॉर्टेंस क्या है रिलेशनशिप्स की। तो अगर उस घर में हमेशा लड़ाई हो, झगड़ा हो, मानो बच्चे को टाइम नहीं दे, पेरेंट्स काफी बिजी रहते हैं, मानो यूजुअली जो हमने भी देखा है रिसेंट ट्रेंड नहीं, जो बहुत टाइम से चल रहा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो जो अपने काम में उतना वो बिजी रहते हैं कि बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं वो। तो वो टाइम लैग करने की वजह से जो बच्चा क्लोजनेस अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। तो उसमें वो गैप बन जाती है जो वाइडन होती है विद टाइम, और एक टाइम हो जाता है कि वो ब्रेक हो जाती है रिलेशनशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक घर का कंजीनियल एनवायरनमेंट हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो उसका असर भी बहुत जरूरी बच्चे पे पड़ता है। और जो आपने दूसरा बोला कि वार्निंग साइंस सुसाइड की, देखिए जी, जो टीन एज है वो बहुत ही वॉलेटाइल वल्नरेबल एज ग्रुप होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि इंसान हमेशा चाहता है कि मैं करूं, मानो बड़ी वो फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे चलता रहता है कि मैं कुछ वैसा करूं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वैसा भी कर सकता हूं।
तो वो उस एज ग्रुप को बड़े ही एहतियात के साथ एक इंसान को उनको मोल्ड करना चाहिए बच्चों को, और बहुत ही तरीके से उनको केयर भी करना चाहिए। वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें तो यूजुअली देखा गया है कि अगर एक बंदे ने सुसाइड बोला कि मैं करूंगा, तो उसके मानो यूजुअली बहुत सारे परसेंटेज ऐसी बोलती है कि उसके फुल चांसेस होते हैं कि वो कर लेगा वो। और यूजुअली इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इम्पल्सिव, जैसे मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ, मैं नहीं ले पाया वो पूरा, मैं मतलब मुझे मेरे लिए बहुत बुरा लगा वो, तो मैंने सोचा कि नहीं मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं मार डालूंगा अपने आप को, आई विल टेक अ नाइफ और वट एवर डिफरेंट मीन्स है, तो वो मैं कर लूंगा। दूसरा होता है प्लान्ड। प्लान्ड होता है कि मेरा डिप्रेशन काफी टाइम से चल रहा है, मेरा जो मेंटल हेल्थ है पुअर है, दवाई चल रही है या और कुछ इश्यूज हैं, तो मैं प्लान करूंगा कि मैं इस डेट पे इस टाइम पे ऐसे मैं ये सुसाइड करूंगा, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। यूजुअली इम्पल्सिव होता है तो उसमें मानो वो प्लान नहीं होता है, जो भी कुछ हाथ में आ गया वो मेडिसिन हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो उससे कर लेगा, तो उसके बचने के चांसेस काफी होते हैं एज कम्पेयर टू जब प्लान होता है। डॉक्टर साहब बात करते हैं प्लान्ड अटेम्प्ट की और जो सडन अटेम्प्ट होता है, जी तो मोस्टली क्या कहा जाता है दैट इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, कि अगर अटेम्प्ट हुआ है सुसाइड, कंप्लीट नहीं हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, इट्स यूजुअली क्राई फॉर हेल्प। मगर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि पाचवाना इम्सोशो नहीं बोलते हैं। So how do you think we as a society can tackle it? देखिए वो भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एज अ सोसाइटी हम बाद में बात करेंगे, एज अ फैमिली हम पहले बात करें कि पहले इन्वॉल्वमेंट इनके पेरेंट्स की हो, जो इनके क्लोज रिलेटिव्स हो, उनका इम्पोर्टेंट जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। कि पहले हमें देखना कि रीजन क्या है इसका। जैसे हम अभी देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी टेस्ट में बच्चों के मार्क्स कम आ गए, फेल की तो बात नहीं है, मार्क्स कम आ गए, पास है मगर मार्क्स कम, एक चीज वो हो जाता है। दूसरा है कि जैसे ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे आते थे, ए प्लस था तो सी तक आ गया, वो भी टेंडेंसी है। तीसरा हो गया फेल हो जाता है। चौथा है रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, ब्रेकअप हो गया तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या घर में उतने मानो इंटॉलरेंट है भी के बच्चे, मैं देखता हूँ सारे नहीं मगर क्योंकि जो Most जो of अभी them. टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वो है ना वल्नरेबल हो गया है, इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो छोटी छोटी बातों पे ही मतलब पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, गुस्से से ही बोल दिया, तो वो उनपे दिल पे लग जाता है कि ऐसे कैसे बोल देते हैं, मानो वो उनको ईगो पे आ जाता है। तो वो अगर हम पहले सफाइज करें, पहले उस पर हम काम करें कि यूजुअली क्या होता है ना कि जब बच्चा छोटा हो तो उसको हम पेरेंट्स को एज पेरेंट्स ही लेना चाहिए, वो बच्चा हमारा है। मगर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है, तो अगर वो हम उसको दोस्त बना ले, अगर वो पेरेंट्स उसको एक दोस्त बनाने में सक्सेसफुल हुए, तो वो मैं मानता हूं कि वो सबसे सक्सेसफुल पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एक पेरेंट को चाहे कि वो बच्चा उतना कॉन्फिडेंट फील करे अपने पेरेंट्स पे कि वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास आए और अपना डिस्क्लोज करे वो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स है सबसे अच्छी गाइडेंस वही देंगे एज कंपेयर टू फ्रेंड्स, इवन रिलेटिव्स, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स है, तो वो भी इनको थोड़ा सा पेरेंट्स को उस पे काम पे ना इस चीज पे काम करना जरूरी है। अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो हमें जो हमारा वो मेंटल मेकअप बन गया ना, कि अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, जैसे मैंने आपको पहले पहले स्टार्ट में जिक्र किया कि हम हमेशा डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, हम कभी पॉजिटिविटी के बारे में बात नहीं करते हैं कि ये दो पोल्स हैं, मानो नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर ये डिसऑर्डर्स है नॉर्थ पोल, साउथ पोल इसकी मानो अच्छाई भी है कि जैसे उसकी वजह से कितनी अच्छी चीजें हो सकती है, इंसान कंटेंट रह सकता है, जो अपनी चीजें फुलफिल अच्छे से कर सकता है। तो अगर हम ये चीजें करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा मेंटल हेल्थ पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टिग्मेटाइज कर दिया है सोसाइटी ने साइकेट्री रिलेटेड इश्यूज को, कि अगर ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ऐसे बोल देते कि यीशु पागल। मगर ये हमें समझना है कि जो ये पागल है ये बहुत ही कम रेशो है साइकेट्री में, और वो भी ठीक होते हैं।
और जो अबाउट 90 to 95% जो साइकेट्री के तकलीफें हैं वो यही है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज है, ये सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज हैं, सोमैटिक सिम्टम्स है जो पेन वेन के रिलेटेड है, जो किसी को भी हो सकता है, या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कोई बाहर निकला, बाहर एक्सीडेंट देख लिया, वो उसको वो ना कंट्रोल नहीं कर पाया इमोशंस को और ब्रेक डाउन हो गया उसको, और उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। दैट डजंट मीन कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने का कि एक टैग लग गया कि ही इज ए इनसेन पर्सन। थोड़ा सा इसमें हमारी भी जरूरत है इसमें मेहनत करने की, ताकि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, और ताकि जैसे हम सुसाइड की बात करें यही एक पे हम महदूद ना रहे, बहुत सारी चीजें जैसे सबस्टेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि कितने सारी डेथ्स हो रही हैं और कितना फैल रहा है हमारे यंग जनरेशन्स में। अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा वाइडन करें अपना मेंटल मेकअप, अपना जहन, तो इसकी वजह से जो भी बेचारे फंस गए हैं इस वबा में, तो वो उनको हम बाहर निकाल सकें। सब एक्सपोजर की बात करते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्सपोजर भी और नेगेटिव एक्सपोजर भी। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी सुसाइड करता है तो बहुत सारे वही ट्रेंड फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि अगर इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं तो मैं क्या ऑल्टरनेटिव चूज, सो इट्स कॉल्ड एज द ग्लोरीफाइड सुसाइड। बिकॉज हमें पता है बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जहाँ सुसाइड्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे हाराखीरी है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो सेलिब्रिटी कल्चर चल रहा है इन दोनों, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा एक मशहूर सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद ही एक दो दिन, आई थिंक 2 दिन का ही पूरा गैप भी नहीं था, तो एक बच्चे ने कर लिया सुसाइड बिकॉज ही थॉट के अगर एम करते मैं ऑप्शन कहीं दे। तो कितना गलत एक्सपोजर मिल रहा है हमारे बच्चों को, किस एज तक लिमिट करना चाहिए माँ बाप को सोशल मीडिया यूज? देखिए जी, जो हम ये जैसे आपने इसी एक्टर की बात करी, सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे ये रोल मॉडल्स है ना, थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए अपने आप को कि रोल मॉडल्स किसको बनाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूर के डोल सुहाने, दूर से हमें सब कुछ ऑल गिल्टर्स और नॉट गोल्ड, दूर से हमें सब कुछ गोल्ड दिखता है कि बहुत अच्छी लाइफ है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इसी की सुशांत सिंह राजपूत की बात करें कि मूवीज है, पैसा है, गाड़ियां हैं, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं ना, वो चीजें से एक इंसान खुश नहीं रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेनमेंट, एक इंसान किस चीज में खुश रहे। एक आपने अगर जैसे अगर आप बाहर काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि जो एक पियोन है वो 5,000 6,000 में भी अपनी महीने की जिंदगी अच्छे से गुजार लेता है, और एक जो मल्टी मिलियनर है उसके पास टाइम ही नहीं होता है अपने लिए। ठीक है, तो वो चीजें एक इंसान, ये मैं वापस वही बोलूंगा कि ये पेरेंट्स पे ही बात आ जाती है कि उस सॉरी उस घर में माहौल कैसा है। जैसे बहुत कोई जैसे अगर हम बात करें ना वेस्टर्न कल्चर की, हमारे को क्या हो गया यहाँ पे ना, सिर्फ कश्मीर में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एशिया की बात। हम वो चीजें इनकलकेट करते हैं जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल हम अच्छी चीजें नहीं, उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड की हम अच्छी चीजें नहीं इनकलकेट करते, जैसे उनकी पंक्चुअलिटी, उनके मैनर्स, ठीक है, जो हम बहुत लैग करते हैं। हम वो चीजें करेंगे, जैसे वेस्टर्न कपड़े हैं उनके, ठीक है, उनका मिजाज, उनका बहुत तौर तरीका, उनकी बात करने का तरीका, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि बहुत वल्गैरिटी आ गई है उसमें, तो हम वो चीजें इनकलकेट करते हैं। तो एक चीज जैसे आपने बोला सोशल मीडिया, एटलीस्ट 12th तक तो सोशल मीडिया पूरा बंद होना चाहिए, जब तक एक इंसान मैच्योर बन जाए। जब एक प्रोफेशनल कॉलेज में आता है तो मैच्योरिटी आ ही जाती है। मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत मुश्किल है, अभी मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जिनके 4th में 5th में क्लास के बच्चे होते हैं तो उनके पास मोबाइल आ जाता है, उसके साथ साथ टैब भी है। और अभी नया ट्रेंड मैंने देखा है कि अभी ना बेडरूम्स में भी टीवी आ गया है। तो ये चीजें एक इंसान को पहले ही कर्टेल करनी है। वो बात आ जाती है पेरेंट्स पे, क्योंकि अगर हम ब्लेम बच्चों पे करें ना, वो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने रोल मॉडल्स को, पेरेंट्स को ही मानते हैं कि अगर वही टाइम नहीं दे पाते तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि
वो बच्चे आगे जाके टाइम दे दें अपने पेरेंट्स को या जैसे भी। और अगर ये कर्टेल हो जाएगा ना सोशल मीडिया, उसकी वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम इनको दूसरी चीजें इनकलकेट कर दें, जैसे बुक रीडिंग बोले, या कोई अच्छी अच्छी नॉवेल्स है या अच्छे सीरीज हैं वो दिखाएं ताकि वो अच्छा सीखे। ऐसा नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास टाइम नहीं, चलो अब बच्चा रो रहा है मैं उसको मोबाइल दे दिया, चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। मगर एक इंसान को ये नहीं पता कि उसकी डिटरेंट इफेक्ट्स कितने हैं आगे जाके। तो अगर हम ये चीजें कर लें पहले ही, घर से ही ठीक करें, तो आगे जाके काफी ठीक रहता है। तो ये जो सोशल मीडिया का यूज बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपने माँ बाप को देखते हैं, तो वो भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मॉडलिंग हम इसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है ये एक फॉर्म ऑफ एस्केप भी हो, कि उसको घर पे अटेंशन नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं है, मेरे पास सोशल मीडिया है। बिकॉज रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखी थी कि बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस आए थे, फिर अब बैन हो गए हैं वो, लेकिन जितने भी आप देखेंगे बच्चे, बहुत सारे वीडियोस फिर वायरल हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ एस्केप, कि जैसे सब्सटेंस अब्यूजर्स होते हैं, दे टेक अ सब्सटेंस अब्यूज फॉर देम इज अ सॉर्ट ऑफ एस्केप, इट इज नॉट सॉर्ट फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस, इट इज एन एस्केप। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया अब एक फॉर्म ऑफ एक ऐसा एडिक्शन बन गया है कि जिससे अब बच्चे भी अब इतने इसके एडिक्टेड हो गए हैं कि माँ बाप के लिए अब कोई वे आउट ही नहीं है इसमें? देखिए साइमा जी, अगर हम बात करें ना एस्केपिज्म की, मगर ये बात कहाँ से एस्केपिज्म आती है? जैसे आपने बोला कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, माँ बाप, तो वो बात वापस वही आ गई ना कि माँ बाप टाइम नहीं दे पा रहे। तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक रिच फैमिली है, वो टाइम नहीं दे पा रही, तो वो अपना टाइम वो ना ठीक करने के लिए क्या कर देते हैं कि वो उनको बच्चों को पैसे दस्तियाब ऐसा कर देते हैं कि उनको लगता है कि चलो बच्चे को याद नहीं रहेगा कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बच्चा क्या करेगा पैसे का, कितना कितना वो मानो, यूजुअली मैंने क्या खर्च बोला कि ये करेगा। जो एज ग्रुप होता है बहुत वल्नरेबल होता है, तो इसमें अच्छे दोस्त भी होते हैं और मैक्सिमम अभी का जो है कि मानो बैड कंपनी मिल जाती है बच्चों को, तो वहां पे वो कैसे स्पेंड करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज में स्पेंड करते हैं। तो इम्पोर्टेंस है कि बच्चों को कितना टाइम दे पा रहे हो आप, आपको टाइम देना जरूरी है बच्चों को। ये देखना है कि अगर वो गया तो कितने बजे उसको आना है, थोड़ा टाइम लिमिट भी होना चाहिए कि कितने बजे आ रहा है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है वो गया दोस्त के घर तो गया, पूरी रात रात भर बैठता है। जो मैं अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं 12th इनफैक्ट एमबीबीएस एमडी तक भी कभी बाहर रहा हूँ किसी घर दोस्त के घर। ये इससे क्या फायदा होता है कि इससे पेरेंट्स को पूरा पता था कि डॉक्टर जुनैद कहाँ थे, जुनैद कहाँ थे। अभी क्या है कि अभी कोई भी चला जाता है, यू नेवर नो वहां पे अगर वो पार्टी भी है तो क्या होगा उस पार्टी में। और जो सब्सटेंस जो रिलेटेड इश्यूज हैं, इसमें दो चीजें आती है, एक पेडलर आता है और एक जो ही इज फ्रॉम ए पुअरर फैमिली, और जो पीता है दे आर फ्रॉम रिचर फैमिली। तो उसमें भी रीजन क्या है, क्योंकि वो उनके पास पैसा दस्तियाब है। जब उनके पास पैसा दस्तियाब है तो उनको इस चीज में डालने में पेडलर्स कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा आए, ताकि उनका वो जो मकदार में वो चाहते हैं बेचना वो बेच सकते हैं। तो सारा बात आ जाती है फैमिली पे ही और पेरेंटिंग पे। डॉक्टर साहब, कितना आपको लगता है ज़रूरी है कि हमारे स्कूल्स में मेंटल हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट की जाए? कि अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास 10th में आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स अब कंपलसरी है, जी ठीक है, तो लेकिन कितना लगता है कि आपको पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना इसके लिए ज़रूरी है? काफी जरूरी है। अगर मैं बात करूं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पे काफी सिंपोजियम्स होते हैं, मानो सीएमईज होते हैं जिसमें पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ टू पेरेंट, ना पेरेंटिंग के टॉपिक पे, हाउ टू पेरेंट अ चाइल्ड, तो वैसे भी होता है। और चाइल्ड रेयरिंग पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस पे बात होती है। या अभी सेक्सुअलिटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, तो उस बारे में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो वी आर ए बिट फार इस चीज में, मगर हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये टॉपिक जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह काफी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे भी कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी हालातों की वजह से थोड़ा सा हम उससे पीछे चले जाते हैं। माने पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट हमारा लॉकडाउन ही है, तो उसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम इंशाल्लाह आगे जाके प्लान में हम रखेंगे कि पेरेंट्स को भी थोड़ा
इन पे टॉपिक्स पे, और स्कूलों में भी ऑन रेगुलर बेसिस चले जाएं और थोड़ा सा उनको भी हम एजुकेट करें। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दिनों, सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जो है वो बच्चे ही हैं। तो क्या असर पड़ता है एक छोटे बच्चे के दिमाग पे किसी भी ट्रॉमा को विटनेस करने का? कि अगर उसने कोई किलिंग विटनेस कर ली, कोई ऐसा इवेंट विटनेस कर लिया, उसको अगर उसने अब विटनेस कर भी लिया, तो अब एज अ पेरेंट्स उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो उसे कैसे हैंडल करें? देखिए जी, स्ट्रेस जो ये बचपना हो, ये जो एज है मानो टिल 18, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि बहुत ही वल्नरेबल होता है, और जो बच्चे का जो अराउंड 5 to 6 years इनका जो दिमाग ये बनता है, तो इनके इमोशंस बन जाते हैं, इनके कैसे एक्ट करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। अगर ये एक अच्छे कंजीनियल एनवायरनमेंट हो में रहेंगे उस टाइम, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर वो कोई क्राइसिस में रहे, या हमें इनफैक्ट अगर घर में भी कोई इश्यूज हो वो हर दिन देखते रहे या किलिंग्स देखते रहे, तो उस पर तो डेफिनेटली असर पड़ता है ये। जैसे हमने रिसेंटली एक वो बच्चे का वो वीडियो या पिक्चर आया था, सरफेस हुआ था, बड़ा ही डिसहार्टनिंग था, बहुत ही बुरा लगा उसको कि उसकी शर्ट पे खून भी लगा हुआ था। मानो उसने वो देखा, अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि ये भी हिट कितना होगा, मगर जितना अभी से लग रहा है मुझे, एटलीस्ट एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं बोलूंगा, तो आगे जाके वो वल्नरेबल तो होगा ही। वो चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जो ये बातें आ जाती है, ये तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। तो वो मानो जैसे हम एएसडी या पीटीएसडी की बात करते थे, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो कोई एपिसोड देख के या वो कोई एपिसोड सुन के उतना बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो इंसान हमेशा उसके साथ ही लिपटा हुआ ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिम्टम होता है वो स्टार्टर रिएक्शन होती है, मान को रात को वो खड़ा हो जाएगा और वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट करता है। और जब ये बच्चे जब ऐसी चीजें देख लेते हैं, विटनेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये उनका मानो वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, मानो छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करते हैं, ग्रेड्स कम आ जाते हैं, मानो वो एक वैसा कोई चीज या कोई इंसान ढूंढते हैं जिससे वो ना हेल्प सीख करे, बट दे आर वेरी वल्नरेबल फॉर अब्यूज एज वेल आगे जाके। तो होपफुली जो ये बच्चा है ये ठीक रहे जी। डॉक्टर साहब, उसी बच्चे की फिलहाल बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके माँ बाप को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया जी, तो उसके माँ बाप को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, उसके किस बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए, और सबसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए? जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेरेंट्स को उसको पूरा अच्छे से केयर करें, प्यार अच्छे से दे। और मानो देखो हर जगह देयर शुड बी अ लिमिट, उतना हाईली पैम्पर भी नहीं करना चाहिए कि वो फिर आगे जाके स्टबॉर्न बने, अपनी छोटी छोटी चीज डिमांड ना वो हासिल करने के लिए देन ही विल शो टेंट्रम्स, वो भी नहीं करना है, मगर केयर करना है और दूर रखना है मानो अननोन लोगों से, ताकि वो अब्यूजिव ना बन जाए ना, उसको अब्यूज ही शुड नॉट फेस अब्यूज। और वही बात है, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो जो बच्चा है उसके साथ वो बड़ी कॉर्डियल रिलेशन में रहे, उतना कुछ वैसा नहीं बहुत दिखाना है इसको कि यू आर बीइंग लाउड और यू आर बीइंग पैम्पर्ड मोर देन अदर सिबलिंग्स, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था। होपफुली ही शुड नॉट रिमेम्बर दैट थिंग। तो अगर हम ज्यादा पैम्पर करें तो जैसे मैंने आपको बोला, तो फिर वो अपनी छोटी छोटी चीजें डिमांड फुलफिल कराने के लिए तो थोड़ा ड्रामेटाइज भी कर लेते हैं, तो वो चीजें बचने के लिए तो बड़ा ही नॉर्मल सा चले जैसे चलना है, मगर कुछ टाइम के लिए बड़ा ही केयर करें, एक्स्ट्रा केयर करें। कितना जी जरूरी है उसकी फैमिली को उसको उस ट्रॉमा से दूर रखने का? बिकॉज अभी क्या है कि हर कोई उसको पूछ रहा है कि क्या, व्हाट डिड यू एज अ 3-year-old kid, he is reliving it. एग्जैक्टली तो जैसे मैं मुझे बोल रहा हूँ हाँ, आपको, जो पीटीएसडी का जैसे स्टार्टर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रिलीविंग का भी, जैसे आप खुद कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, आपको आपको पता ही हो, आपने पढ़ाई होगा नहीं ये। नहीं डॉक्टर साहब, आई विल क्लैरिफाई हियर, आई एम डूइंग डिग्री इन सोशल साइकोलॉजी। आई थिंक खालिद भाई मिसअंडरस्टूड अर्लियर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए जी चलिए, माशाल्लाह। जी,
तो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कश्मीर को लेके कि कितना स्टिग्मेटाइज्ड है यहाँ पे। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को बोलते हैं कि दमगी परेशानी, तो अक्सर उसको बोलते हैं वल बुनिमत पीरस, या फिर उसको बोलते हैं सिपर कुरान सिपर नमाज से गसक ठीक। एक स्पिरिचुअल एलिमेंट हर एक प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू हीलिंग। लेकिन कितना ये डिट्रीमेंटल हो सकता है कि आप किसी एक कंडीशन को टोटली ही अवॉइड करते हो, या फिर आप उसको किसी ऐसे इंसान के पास ले जा रहे हो जिसको हो सकता है कुछ भी ना पता। जी देखिए जी, अगर अगर एज अ डॉक्टर मुझे बोलेंगे आप, तो मैं ये चीजें नहीं मानूंगा जो एक जिन है, पीर है, ऐसा ऐसा, ठीक है जी। अगर एज ए मुस्लिम मुझे बात करें, क्योंकि मैं पेशेंट्स को भी बोलता, इसलिए मैं इस मीडियम से भी मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ। आई विल जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट इट। सूरज जिन है, तो कुरान शरीफ में हमारे में ये होता ही नहीं अगर ये चीज नहीं होती। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि मेंटल इलनेस का इशू है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो एक डॉक्टर के से ही मिल जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि फेथ हीलर के पास ना जाए, पीर फकीर के पास ना जाए। उनको फेथ है, उनको बिलीफ है, दे शुड कंप्लाई टू इट, दे कैन गो फॉर इट। आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। मगर एक फकीर, एक पीर उनको डॉक्टर के पास नहीं जाने दे और उनको बोले कि तशे यूजुअली वनान तशे नजर लजमस, तो वो सबसे बड़ा मानो जालिम और एक एनिमी है एक उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वो उसको ठीक नहीं होने दे रहा है। मैं यूजुअली एक पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपको जाना है पीर के पास, आप जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कोई पीर आपको बोलेगा कि आप दवाई को बंद करनी है, तो वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन है। तो वो हमेशा जब ऐसी तकलीफ हो, एक डॉक्टर के पास जाए, दवाई लें, आगे जाके काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग कराए। हाँ, अगर वो चाहता है पीर फकीर के पास जाना, एक खुदा दोस्त के पास जाना, या डिफरेंट फेथ्स के अलग भाइयों के पास जाना, तो कोई इश्यूज नहीं है। मगर डॉक्टर के पास जाना सबसे प्राइमरी चीज होनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी अक्सर कोई बात करता है कि मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे जहनी परेशानी है, कश्मीरी में अक्सर कहते हैं मैं दिल परेशान, सुशरवाना में दिमाग परेशान, सुशरवाना में दिल परेशान। तो अक्सर मैंने देखा है लोग उसको डिसमिस कर देते हैं, दपान ना सोच आतकुन तुम कर आतकुन तो नद गसी मैं अतकुन। तो दे थिंक दैट इट इज अप टू द पेशेंट टू थिंक और नॉट टू थिंक अबाउट इट। तो कितना असर रहता है कि मानिए कॉग्निटिव थॉट्स का या फिर उसका जो खुद का मेकअप है, बायोलॉजिकल मेकअप, ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए जी, जब जैसे ये बोलते हैं ना कि सुकून रोम, वो एक पेशेंट को ही पता होती है कि उससे व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, उसके साथ क्या हो रहा है, वो एक पेशेंट ही समझ सकता है। अभी एक चीज है कि साइकेट्री में अभी कोई ये ना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे एक इंसान को हम दिखाएं कि आपको इतना डिप्रेशन है, या आपको इतनी एंजाइटी है, या आपको इतना साइकोसिस है। जैसे हम दिखाते हैं शुगर वाले पेशेंट को, या थायराइड वाले पेशेंट को, या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को कि आपको इतनी रीडिंग है, या आपको ऐसी खराबी है, आपको वैसी खराबी है। वो चीजें नहीं है साइकेट्री में अभी। तो एक क्या होता है कि एक पेशेंट को यूजुअली बोल देते हैं कि पाने की कहीं प्रॉब्लम, आपको क्यों डॉक्टर के पास जाना है। मगर ये एक पेशेंट तक नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें बायोलॉजी इसका डिप्रेशन की, तो हमारे जहन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो केमिकल्स होते हैं हमारे जहन में। उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो डिप्रेशन एंजाइटी में है, तो वो सीरोटोनिन है, जो एक हार्मोन है। तो उसकी मकदार जो है वो कम हो जाती है डिप्रेशन और एंजाइटी में। वो बातों से ठीक नहीं होगा, वो दवाई से ही ठीक होता है। उसके साथ साथ अगर हम काउंसलिंग भी करें तो वो भी फायदेमंद होता है, मगर दवाई तो जरूरी लेनी है पास एक पेशेंट को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो डिप्रेशन वाला पेशेंट था, उसने मुझे बोला है, वो आप मानो आपको समझ आएगा उससे कि उसको कितना स्ट्रेस था। बात थी कि उसने बोला कि अगर डॉक्टर साहब में नर या जंग आसी ना छिनमत, तम बगैर आसा मे दिलुक सुकून बराबर, मेहानी खतरा ती ठीक। तो ये आप समझ सकते हो कि एक जो स्ट्रेस वाला पेशेंट, उसको कितना डिस्ट्रेस होता है, वो वही एक पेशेंट समझ सकता है। हमारे को क्या है कि हम सिर्फ बातें कर लेते हैं कि गस ठीक से क्या प्रॉब्लम है, कत सोचान से क्या प्रॉब्लम है।
यूजुअली ओसीडी वाला पेशेंट 3-3 4-4 घंटे लगाता है नहाने में। क्या गो क्या चुक लागा न्यू टाइम, क्या हो गया आपको, आपको नहीं पता है जल्दी निकलना है, मगर वो उस बेचारे को ही पता है कि उसकी सोच ही नहीं है सही। उसकी सोच में लगता है कि मैं गंदा हूं इसलिए मैं थोड़ा पानी और लगाऊं, मैं गंदा हूं तो और पानी लगाऊं, मैं गंदा ही हूं तो मैं और पानी लगाऊं। तो ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक उसके 2-2 3-3 घंटे जाते हैं। तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि ये बातों से ठीक नहीं होता है, दवाई से ठीक होता है। अब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो कितना अभी अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल है अगर कोई अवेल करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, प्लस जो हमारा SMHS है, हमारे 2 विंग्स हैं। हमारा असल में जो प्राइमरी इंस्टीट्यूट है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है रहना वाली, और जो सेकंड विंग है हमारी SMHS में। तो हमारा जो बेसिक नीड्स जो साइकेट्री की है वो सारी है। उसके साथ साथ सब्सटेंस यूज रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उसके लिए हमारी इन पेशेंट फैसिलिटीज हैं। बच्चों के लिए हमने चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक खोल दिया है, और पिछले 1 साल से हमारा जीरियाट्रिक सेंटर जो ओल्ड एज सेंटर है वो स्टार्ट हुआ है। उसको वही मैं ही देखता हूँ, वो हमारी सैटरडे हमारी OPD होती है SMHS। मगर जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो तब से क्योंकि वो बिल्डिंग जो हमारी है वो भी कोविड अंडर हो गई, तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं अभी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बेसिक चीजें हैं साइकेट्री में सब कुछ है हमारे पास दस्तयाब। तो अगर कोई भी अवेल करना चाहता है तो वो आ सकता है। काउंसलिंग भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेसिक चीजें हैं। तो डॉक्टर साहब, एक्चुअली हुआ क्या है, रिसेंटली हमने देखा है कि लोग अक्सर बात करते हैं मेंटल हेल्थ, और प्रॉब्लम अब ये है कि जो इसका एक्सपर्ट नहीं है वो भी इसके बारे में एडवाइस देना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो कितना डेंजरस ये हो सकता है, बिकॉज लोगों को समझ नहीं है इस बात की। They will prefer a novice, an amateur, rather than a psychiatrist, क्योंकि उसको लगता है ना मुझसे कह रहा हूँ ठीक, मैं साइकाइट्रिस्ट को समझ ऐसे जरूरत है। जी लेकिन कितना डिट्रीमेंटल हो सकता है ये उसकी हेल्थ पे? जी सुबीर जी, असल में क्या होता है ना कि जब ये पेशेंट, मैं पहले डॉक्टर्स की बात करता हूँ, जब ये पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास भी जाता है ना, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने स्टार्ट में एंजाइटी की बात की कि उसको चेस्ट पेन भी लगता है या GI प्रॉब्लम्स भी होती है, तो यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट यूजुअली क्या करता है कि वो खुद ही ट्रीट कर देता है। तो मानो वो रेफर नहीं कर लेता है ताकि वो पेशेंट ठीक हो जाए पूरी तरीके से। मैं बात करूं, मैंने MBBS किया है, मैंने भी सब कुछ पढ़ा है, मगर मैंने फिर MD साइकेट्री में की है, तो मेरी महारत साइकेट्री में है। मैं एक कार्डियोलॉजी वाले पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता हूँ जैसे एक कार्डियोलॉजी वाला पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट से ठीक हो। जैसे एक ऑर्थोपेडिशियन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, वैसे मैं ऑर्थोपेडिक पेशेंट ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर्स में भी बात आती है कि उनको यूजुअली प्रेफर करना चाहिए ऐसा पेशेंट, और उनको थोड़ा बताना चाहिए कि ये तकलीफ नहीं है, आपको ये तकलीफ है और आपको यहीं से ट्रीटमेंट सीख करनी चाहिए ताकि आप ठीक हो जाए। अगर दूसरी चीज है, अगर हम बात करेंगे एक लेमैन्स की, लेमैन यूजुअली क्या होता है ना कि पेशेंट स्टिग्मेटाइज लगता है कि मैं स्टिग्मेटाइज हो जाऊंगा, स्टिग्मा हो जाएगा अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा। अगर मैं डिस्क्लोज करूंगा तो ये मुझे लगता है कि मैं फैमिली में मुझे बोलेंगे तुम पागल हो। तो वो चीजें भी वो कर्व करने के लिए या वो हाइड रखने के लिए वो एक नो मैन के पास जाता है जिसको पता नहीं होती इस चीज के बारे में। तो उसको भी थोड़ा गाइड करना चाहिए कि अगर कोई एक बंदा, जैसे मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे पास आएगा कोई तकलीफ लेके, अगर मेरी महारत है तो तभी मैं उसको गाइड करूं, मगर जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो बेटर है वो अवॉइड करे, और वो खुद ना उस चीज के डॉक्टर बने, ताकि उस जो भी बंदा है जो उसको भी तकलीफ है वो सफर ना हो आगे जाके। अगर एक पेशेंट एट फर्स्ट गो एक साइकेट्रिस्ट के पास आए, या अगर कार्डियोलॉजिस्ट का पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट वाले के पास जाए, ऑर्थोपेडिक का पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन के पास, तो उसका आउटकम ज्यादा जल्दी अच्छा होता है और काफी बेटर होता है एज कंपेयर टू अगर वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास लिंगर ऑन हो जाता है, बाय देन एक वो पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जब वो एक अपने महारत वाले डॉक्टर के पास आता है तो उसको फर्क नहीं हो पाती। वजह वही होती है कि वो दवाई ले रहा होता है, उसका डोज कम या ज्यादा होता है, या दवाई सही नहीं होती है, वो ठीक भी नहीं होता है।
तो हमारे को ग्रास रूट लेवल पे ही देखना चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए और खुद ना हर एक चीज का आलिम बने। अब रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा जिसमें मेंशन किया हुआ था उन्होंने कि अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक 3,66,906 पेशेंट्स ने विजिट किया साइकाइट्रिक हॉस्पिटल को अलोन। जी। तो मुझे नहीं पता ये डेटा कितना सही है और कितना गलत है, और उन्होंने फर्दर मेंशन किया कि ऑन एन एवरेज मानिए एक मंथ में उन्होंने 30,000 पेशेंट्स को देखा। तो कितना आपको लगता है कि इस डिमांड, अगर ये डिमांड है तो उसके लिए हम क्या स्टाफ अवेलेबल है इसको केटर करने के लिए? देखिए जी, अगर हम बात करें पिछले एक साल से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, पोस्ट आर्टिकल जो भी था, तो पेशेंट्स बहुत कम आ रहे थे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या था। मगर जब थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो क्योंकि हमारी उस टाइम दोनों ओपीडी चल रही थी, साइकेट्री में भी और एसएमएचएस में भी। तो साइकेट्री में यूजुअली हमारा जो रोल होता है 300 to 400 पेशेंट्स एट एन एवरेज देखते हैं हर दिन। अगर हम एसएमएचएस की बात करें तो वो अराउंड 200 से 300 पेशेंट्स देखते हैं हम एट एन एवरेज। ठीक है, तो फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि इश्यूज बहुत हो गए थे, उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया था, बहुत बाहर लोग रह गए थे तो अपनी फैमिली के वो नहीं मिल पा रहे थे, उसकी वजह से भी पेशेंट्स काफी बढ़ गए थे। उसके बाद जो अभी कोविड का इश्यूज हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि सारे हॉस्पिटल्स बंद हुए, साइकेट्री भी मानो एसएमएचएस में भी पेशेंट नहीं आ पा रहे थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से वो डर भी रहे थे। तो बहुत ही कम पेशेंट्स थे, मैं बोलूंगा कि पहले एक डेढ़ महीना हार्डली 30 से 50 पेशेंट देखते थे हम, या उससे भी कम कभी। मगर अगर हम अभी देखेंगे साइकेट्री में हमारे को अभी ओपीडी रहती है 400 से 500 ओपीडी पर डे, तो काफी ज्यादा पेशेंट्स हैं। मगर अगर हम स्टाफ की बात करें, हमने मानो जो हमारा न्यू रिक्रूटमेंट है, हमने जो पोस्ट बढ़ गए हैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी रिक्रूटमेंट होने वाला था बिकॉज बट अनफॉर्चुनेटली जो कोविड की वजह से वो थोड़ा बैकफुट पे गया है। मगर अभी बोल सकते हैं कि ठीक है, स्टाफ ठीक है क्योंकि हमारे पास पीजीज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसा कुछ इश्यूज नहीं हो रहे। मगर जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट खुल गए हैं और ऑलमोस्ट उनको भी एडवर्टीजमेंट भी होने वाली, ये कब का हो गया होता, मगर इंशाल्लाह आगे जाके हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है अभी कि मानिए अगर पेशेंट्स फिजिकली नहीं जा सकते हैं हॉस्पिटल कोविड की वजह से, तो क्या कोई ऐसी फैसिलिटी है रखी है वहाँ पे कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सके, टेलीसाइकाइट्री की जो हम बात करते हैं? जी, हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था, मानो ऑलमोस्ट विद इन 10-15 डेज से ही हमने स्टार्ट किए थे। हमने इनफैक्ट आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, मेरा नंबर भी था फेसबुक पे, न्यूज़पेपर पे, हमने कंसल्टेंट्स के भी दिए थे, पीजीज के दिए थे, जो सीनियर रेजिडेंट्स है उनके दिए थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के भी दिए थे। तो हम अवेलेबल, इनफैक्ट अभी भी कोई पेशेंट दूर से फोन करता है या नहीं आ पाता है तो कोशिश करते हैं हम कि ऐसे ही ट्रीट करें। और यूजुअली क्या होता है ना कि साइकेट्री में एक बार फिजिकली पेशेंट को देखना जरूरी होता है ताकि पता चले कि क्या है, क्योंकि यूजुअली what a family member thinks and comprehends is not always the correct thing। तो हमारे को एक बार पेशेंट देखना पड़ता है। मगर अगर हमें लगे कि ज्यादा डिस्ट्रेस है तो हम यूजुअली पेशेंट को दवाई भी दे देते हैं फोन पे। मगर साइकेट्री दवाई का आपको पता भी होगा कि इश्यूज होता है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, आपको पता होगा कि वो कैटेगरीज में आते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर जितना भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब से मार्च से स्टार्ट हुआ, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने थे, तो रेफर होते थे, बाहर से भी रेफर होते थे, इंडिया से भी रेफर होते थे। तो काफी हमने कोशिश की कि हेल्प हो उस टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी बंद किया है, अभी भी हमारे को पेशेंट्स फोन करते हैं। रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारे जो एचओडी साहब है मोहम्मद मकबूल साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था तो उन्होंने उसमें नंबर भी दिए थे किसी डॉक्टर के, तो उसमें मेरा भी नंबर था। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को मदद कर सके। डॉक्टर साहब, आपके पास अभी कोई ऐसा नंबर है कि अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो अभी कोई ऐसा है वहाँ पे कुछ ऑप्शन अवेलेबल कि जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे जी। तो अभी मानिए अगर मुझे कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए कौन सा नंबर फिर अभी चल रहा है?
वो मैं आपको बता के मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब हम लेते हैं खालिद भाई, अब आप प्लीज देखिए कोई क्वेश्चंस मत है ऑडियंस में से। Just give me a few minutes. I'll just intermittently will take Dr. Junaid Saab will intermittently take some questions, and then Saima will again have some questions एक with you. मिनट में ले सकता हूँ, 1 मिनट? जी जी, Yeah, बिल्कुल of बिल्कुल। course, sure. ओके जी, थैंक यू सो मच। तो खालिद भाई, have you noted down those questions? Yes, I have made a note. I will just ask those questions to him. We have some questions on our Facebook page also, and we have questions on Zoom platform also. I mean, as soon he comes back, we'll just ask some questions, and then again you start discussing things around. Maybe you can speak on something, Saima, till Dr. Saab comes back. He has a call. He was on call. तो आई होप कि अब जो ये सेशन हुआ, अगर एक बंदा भी बेनिफिट होता है तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दैट दे हैव फैसिलिटी अवेलेबल, दे हैव पीपल अवेलेबल, दे हैव एक्सपीरियंस्ड पीपल अवेलेबल। तो अक्सर ये एक डेंजरस सा ट्रेंड चला है कश्मीर में कि हर कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है, मगर उस हिसाब से नहीं करता है कि जिस हिसाब से अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर एडवाइसेस को लेके बात होती है मेंटल हेल्थ की, लेकिन ये बहुत डेंजरस है This back. एंड यू शुड अवॉइड दिस। Dr. Junaid, you're on mute. No, I have just unmuted him. I have. Okay, Dr. Saab, the first question that we have as of now is from Zishan Hamid. Zishan Hamid is in the US. He asks us that from last 2 years, I'm working in a kind of isolated place in the US. I have very less contacts with friends and family. How can I make sure that it doesn't lead me to a condition of stress or depression? But simultaneously, COVID crisis have made it even worse for me. Please suggest some things for me. Assalamu alaikum, Mr. Zishan. Nice. It's a very genuine question, and no, it's very something everyone has been suffering because of COVID. If we talk about stress because of COVID, I will tell you some basic things which you should do so that you know these things can be curbed. Minimize watching news. That's the first thing which I will tell you. You need to be in contact with in general knowledge or what is going on in the world, but try to minimize it to the maximum and see only those things which you can trust. There are so many rumor mongers which are being spread because of these news media. Second will be take adequate sleep, at least 6 to 8 hours. Take good food. If you are having some family members there, you can spend more time with them. If you are having your wife, because I don't know about your relationship status or if you are living alone or not. If you are living with your family, you can help your wife in kitchen. You can play with your children. If you are having some hobbies which where you could not give time when you were busy with your day-to-day schedule, you can put more time into that, and you can just flourish, and you can just recreate those things which you have not done from long time. And you should try to speak to people who are around you. You will be having some friends in the society or in your community or in your building. You can just have a chit chat with them. And if this COVID thing is hampering that, there was a very relevant thing which used to happen in ancient times. Usually there was something called as talking through windows. There used to be houses very close by, so people from both sides will sit on this near windows, and then they will talk through that. So he can do that. And if he has children, so he can play with them. So these are very small things which he can. And there is something called relaxation exercise. If he can do that, there is something called taking long breaths and inhaling and exhaling.
If he is able to do that, meditation, that is a very wonderful thing. He can do that. Thank you so much, Dr. Saab. Next question we have from Ashik Hussain. He's saying, what's the effect on brain if a person suffers from depression, and how can we differentiate anxiety and stress? See, अगर हम depression की बात करें, depression usually a patient will come up with sadness of mood, decreased interest in work. There will be either increase or decrease in sleep, either decrease or increase in appetite. Patient will be hopeless, helpless, worthless. He will have those things in his mind, that he will feel hopeless, helpless. And on severe parts, if the severity increase, then he will have suicidal ideation and tendency that he will try to end his life because he's not feeling happy with whatever he is doing. अगर हम एंजाइटी की बात करें, I have told you कुछ कोई चीजें होती which are very normal things, जैसे गुस्सा आना, you feel very angry, you feel very irritable sometimes, you feel depressed, you feel agitated. So these are very normal things. ये emotions है, normal emotions है. किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी को भी मूड खराब हो सकता है, किसी को कोई भी लो फील कर सकता है. हाँ जी, जब ये हमारी डे टू डे लाइफ में हैम्पर करे, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक बच्चा है, उसकी स्कूलिंग में के ग्रेड्स कम आ जाए, एक बिजनेस वाला वो बिजनेस में फ्लोरिश नहीं कर पा रहा है, एक वर्किंग क्लास वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है. तो जब ये चीजें होती है, व्हेन ही इज गेटिंग his day-to-day life is getting involved and disturbed, then he should come and seek treatment. तो stress और anxiety ऐसे आपको delineate कर सकते हो. और जो डिप्रेशन है उसके ये सिम्टम्स हैं. अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, देखिए जी, अगर मैं बात करूं हर एक की पर्सनैलिटी की, जैसे हमने एक सवाल में जी ने पूछा था, सामिया जी ने, कि कुछ तो ऐसा ही था जिसमें मैंने ऐसे बोला था कि स्ट्रेस हर एक को होता है और कोपिंग मैकेनिज्म और पर्सनैलिटी अलग चीज है. हर एक की पर्सनैलिटी अलग है और कोपिंग मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने सबको अलग तरीके से दिया है. मगर एक इंसान एक लेवल तक टॉलरेट कर पाता है अपनी स्ट्रेसेस, मगर अगर वो जो बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया, then he becomes vulnerable and then he throws himself into depression or anxiety. तब उसको ट्रीटमेंट सीख करनी चाहिए. जी. We have another question from Ejaz Mosri Saab. He asks that what are the best means to come out of depression, especially for young ones? देखिए जी, बेस्ट मीन्स तो अगर हम करंटली बोलें, देयर आर टू मेन थिंग्स. वन इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अनदर इज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर बैठ के कुछ नहीं होता है. इफ ए पर्सन इज फीलिंग डिप्रेस्ड, ही शुड सीक ट्रीटमेंट. वो एक डॉक्टर के पास आए, वो डिसाइड करेगा कि उसको दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है, किस हद तक he is involved, or only counseling will help. But usually क्या होता है कि if a person needs a better outcome, better treatment, तो it goes hand in hand, both things. आपका pharmacological और non pharmacological counseling as well as medicines. तो ये चीजें important है. अगर हम बच्चों की बात करें तो वो वापस बात आ जाती है रीजन पता करना है हमें कि एक बच्चा क्यों डिप्रेस्ड है. There could be different multiple reasons. कोई bullying issues हो सकता है, relationship issues होते हैं, वो बहुत कॉमन चीज होगी ना, जो मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन में. पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से बच्चे पे असर पड़ता है, या पैसे का इशू होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर पे. तो ये चीजें ऐसे ग्लोबली या मानो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कैसे ठीक हो जाए. पहले वी नीड टू डिग इनटू इट, क्या रीजन है बच्चे का, तो वो एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है. We have another question from Dr. Shabir Hassan that are there any professional psychological counselors in Kashmir? Do we have them in hospitals, schools, or colleges? Because there's a huge stigma attached to the word psychiatry. As such, it would have been great to have counselors where the patient won't feel that he is being judged by the society. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह कोई कमी नहीं है.
साइकेट्री हॉस्पिटल में भी साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, एक दो साइकोलॉजिस्ट हैं जो प्राइवेट में भी देखते हैं, और कोई कोई है जो कॉलेज में भी एसोसिएटेड है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो ट्रीटमेंट सीख करना चाहता है। जैसे देखिए अभी जो हमारा एसएमएचएस का हॉस्पिटल बंद हो गया हमारा, बिकॉज बंद नहीं, असल में वो कोविड अंडर है, तो हमारे को सारी ओपीडी साइकेट्री हॉस्पिटल में ही होती है। तो वहां पे आने में बहुतों को वो होता है कि अगर मैं गस तो मैं वन तु पागल बह गस पागल हॉस्पिटलस में। ठीक है, ये बहुत ही मिसनॉमर है, हर एक चीज हर एक इंसान ऐसे ही कर लेता है। तो कभी मेरे से भी पूछ लेते, डॉक्टर साहब आप कहीं प्राइवेट में देखते हो? कि हम नहीं आना चाहते हैं वहां पे, अगर हम आएंगे तो हम, अगर हमारे को कोई रिलेटिव देखेगा तो हम उसको क्या बोलें। तो वैसा प्राइवेट में भी अवेलेबल है और हॉस्पिटल सेटिंग में भी अवेलेबल है। वो एक इंसान को अपने तक है कि वो कहाँ पे ट्रीटमेंट सीख करे। मगर मेरा मानना है कि पेशेंट शुड कम एंड सीक ट्रीटमेंट। डोंट वरी अबाउट where you have to come, but think if you come to a specialist you will have better dividends. We have another question from Dr. Zahoor. He asks that when both parents are working and have no option to be with kids, say from morning to evening, what's your suggestion and advice to those parents to take care of the well-being of their children such that the kids do not feel uncomfortable and isolated? Uh, See, if we talk about it, this is a very common, problem we as a society is facing currently, because most of the families and the parents, they are both working. The issue is where you are keeping your child. The important thing is that if you are keeping your child with your grandparents or with your family members, who you think that they are very dependable, and they will take care of him, then you need not to worry to an extent. Not, I will not say to a greater extent, to an extent. But if you are keeping your child with a with a maid, which is another trend currently which is happening in Kashmir, I have seen, then you need to be a bit careful, because you never know. See, I will tell you an example. If I being a parent, I have a 3-year-old son. If he becomes cranky, even I get irritated. If he starts crying, even I get irritated, and I may not hit him, but I will scold him. He's just being a 3-year-old kid. I'm just giving an example. Even I, being a parent, will get irritated. So how can I trust a person who is not known to a person, to my child? ठीक है, तो वो we have to keep that thing into mind. Another aspect is you have to take some time for your child. There is not an excuse. ठीक है, ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे सुबह 9 बजे निकलना है, मैं शाम को 6 बजे आता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा. But you have to take time. You can just sit with your child for a half an hour in the morning, और जब आते हो at least talk to your child कि क्या किया आपने, पढ़ाई कैसे की, क्या किया, क्या नया सीखा, कौन दोस्त मिला. Even he will become comfortable. ऐसा ना हो कि आगे जाके that gap will widen और वो फिर कभी fill नहीं होगी. So we have to take all these things into consideration. That time will not, जो time है, it can't be replaced with money, it can't be replaced with gadgets, it can't be replaced with clothes or eatables. जो time है, it is your time, and you have to manage your time so that you give some time to your children. That is an important thing. We have one more question. It's an anonymous question that I understand that the responsibility is on parents more, but what about a shy kid that's by nature has nothing to do with the environment? The guy says that shy or introverts are mostly bullied at schools and other places, and they won't tell this to anyone. How much are the chances of them getting developed a personality disorder? See, if we talk about personality per se, that is from the beginning. Okay? You can just mold it, but you can't change it. ये सबसे important चीज है. If a person is shy, if a person is introvert, he will be like that. If a person is extrovert, he will make friends. He will be like that. If a person is shy,
he will know he is anxious, he is afraid, he will be like that, but one person can change it. तो जैसे कोई important चीजें होती है, जो एक dependent person होता है, he will depend on everything. एक anxious होता है, he will not be in a position to talk in front of so many people. तो we have to develop something in them ताकि वो आगे जाके अच्छे से कर ले. जैसे अगर if we talk about shy and जैसे introvert and they are bullied, see, bullying can happen to everyone. It depends on, again tell you, parenting is most important thing. अगर वो bully कर रहा है तो वहां पे देखना है कि जो वो parents है उसके साथ how close they are with that child. If he is being bullied, will he tell that thing to your child or to his parents? अगर वो नहीं कर रहा है, that means there is a gap between parents and child, and parents have failed in their duty. समझ आ रहा है आपको मैं बोलने का? What is my crux of this is, if a child takes you as a friend, when he becomes mature, that time you should realize that you have become a successful parent. He should not go to someone to express his worries, his troublesome issues. He should not go to someone else. He should not go to ABCD. He should always look for his parents that time. If he does that, then his anxiety will automatically come down. And bullying in school, it has an impact. It has a negative impact, but that doesn't mean that child will not grow in a good person. And being an introvert, it has its positive things, and being an extrovert, even it has its negative aspects. So everyone is being made by the Almighty, and everyone has its pros and everyone has its cons. So parenting is most important in all these things. We have another question from Ibrahim Sheikh. He's at South Korea. He's asking a question specifically related to masters and PhD students. That what are the suggestions for a PhD student or a researcher that he should stop worrying and win over the stress? See, if I talk about PhD, it is itself a very stressing time, because when I was doing my fellowship at a very prestigious institute in Lucknow, there was one PhD student. I had seen that she was doing her PhD from last, I think, 5-6 years, and she was at the brink of leaving that her course. So if we talk about stress, see, we need to be, there are in everything there are pros and cons, and there is a head and tail to every aspect. We need to see to a brighter aspect. If you have to grow, if you need to be happy, we have to see at the brighter aspect as compared to looking at the negativity of a person. See, if you talk about me, if you come, for example, A comes to me for a consultation, and he will feel, when he comes to me, either he will like me as a doctor and he will dislike me as a doctor. It depends on his mentality, what he wants from Dr. Junaid. Because sometimes I may say something that it hurts him or her, or sometimes I may say something that makes him happy or makes her happy. So it depends on a person how he takes that person. So if during PhD most of the time you are concerned with your guide, you can take his advice as something that you are learning more. If you take it like that, then you will try to excel more. Or if you take his suggestion in a negative way, that you feel that he is bullying me, ये मेरे को तंग कर रहा है, ये मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे deliberately he is not giving me sign so that I am from a different faith. Example I am giving. So it depends on a person. अगर इसको सीखना है, then see, it's a very common dictum that seniors are always correct. So you have to follow that to
be in a comfortable zone rather than becoming so negativistic about a person that then you will lose focus on your course, and then that person will land into mental health issues. So it's better to look into the brighter aspect of a person. We have another question from Adil Bhatt. He's asking that how much does a pessimist family or society affect a person's mental health, and how can what are the strategies to counter these type of things? If a person is from a pessimistic family, or they will always think, that's what I was talking to you one question before, no, that they will always focus on the grayer aspect of a person. कि काम करने से पहले वो बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, तो वो पहले ही काम करने से पहले ही वो नहीं कर पाएगा. तो उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं कि we need to see at a brighter aspect. See, life is not a bed of roses. There will be hurdles in between, and there will be green meadows in between. So we have to, and nothing is permanent. सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही, अगर एक इंसान फोकस करे ना कि कोई चीज परमानेंट नहीं है जिंदगी में, हर एक चीज मानो टेम्परेरी है. अगर आज खुशी है तो कल गम होगा, गम के बाद को खुशी आएगी. और ऊपर वाले का भी ऐसा है कि वो उतनी आजमाइश नहीं एक इंसान में डालेगा कि जो वो कुवत नहीं कर पाए. तो इफ वी थिंक इन दैट एस्पेक्ट, देन वी विल हैव अ बेटर आउटकम, एंड that pessimism can be changed into opportunism. It is all in our brain, in our head. Because if we talk about our body, brain is a very, very important and a very powerful organ. सब कुछ हमारे जहन से ही कंट्रोल होता है. If I take A as a good person, अगर वो कितना भी मेरे साथ बुरा करे, that A will be good to me all the time. And अगर if I take A as a bad person, वो कितना भी अच्छा करे, I will always think in a negative aspect when I think and talk about it. So everything is in our thoughts, in our mind, in our brain. So we need to think in a positive way so that pessimism can be changed to opportunities. Sir, I have a question actually first. Sure. So as a researcher, हमें पता होती है that we go through a lot of tensions, हमें बहुत होती है, stress होते हैं, deadlines अक्सर meet नहीं कर पाते हैं. तो अक्सर होता क्या है, when you leave your work, you feel guilty कि मैं खुद उसमें बेहतर होई काम करें, rather than giving some time to ourselves. This is seen as something कि ना ये इसका अलग मतलब होई काम करें. तो कितना असर जरूरी है मेरे लिए कि मैं खुद को अपना एक टाइम सेट करूं खुद के लिए, और उस अपने एक पीएचडी को दिन में एक बार मानिए किसी और जगह पे रखूं. देखिए जी समझ, अगर मैं आपको बोलूं ना, जैसे मैं आपको पहले अपनी एज ए डॉक्टर अपने एग्जांपल देता हूं कि मेरे को अपनी कलीग्स, अपने फ्रेंड्स बोलते हैं कि फ्रॉम डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स कि तु साइकियाट्रिस्ट ना शो आसान दिमाग बड़ स्ट्रांग, तु कुछ हैंडल हेकान करित. देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आई एम ए गवर्नमेंट डॉक्टर, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. माय टाइमिंग इज टेक इट एज 9 to 5. ठीक है, मेरे को हॉस्पिटल में 10 से या 9 से 5 तक बैठना है. तो मैं उतना ही टाइम हॉस्पिटल में हूँ. जब मेरे को हॉस्पिटल के गेट के अंदर मैं जाऊंगा तो आई एम ए डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल. व्हेन आई लीव एट 5 फ्रॉम दैट, आई एम नॉट डॉक्टर, नो, आई एम नॉट एम्प्लॉयड टू दैट हॉस्पिटल. मेरे को आगे जाके इधर क्लिनिक होता है या घर जाना है. तो वो थोड़ा फिक्स करना है. और जो जैसे हमारे को एज अ साइकियाट्रिस्ट बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना पेशेंट्स के, बहुत सारे, मानो हमारे को वो चीजें, एक पेशेंट बोलता है कि वो अपने स्पाउस को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को ना बोले. एक पेशेंट हमको उतनी वो चीजें अपनी सीक्रेट्स और व्हाटएवर दे कम एंड ओपन टू अस. तो हमारे को वो बहुत ही ना, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन. अगर हम वो नहीं फिक्स कर सकें, इवन वी हैव अ टेंडेंसी कि हमारी फैमिली लाइफ खराब हो सकती है. तो वो हमारे को इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी देनी है कि अगर मैं इतना ही हूँ, देन आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट. ये बोलना बहुत आसान है. आपको लगेगा कि डॉक्टर क्या बोलता है कि कैसे सोच चेंज कर सकते. इट इफ यू डिसाइड टू डू इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जो हमारा दिमाग है ना बहुत पावरफुल है. जैसे अगर आपने दिमाग में डाला कि डॉक्टर जुनैद अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो अगर मैं कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट
किसी डॉक्टर पेशेंट को करूं वो कभी नहीं मेरे पास आएगा। अगर मैंने उसके जहन में एक पेशेंट के आ गया डॉक्टर जुनैद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मगर अगर मुझे आएगी भी नहीं ट्रीटमेंट करने तो वो हमेशा मेरे पास ही आएगा और दूसरे पेशेंट्स को भी मेरे पास लाएगा। तो वो हमारे को वो मेंटल मेकअप और जो हमारी सोच है वहां पे हमें कट करना है। जैसे आपका है, आपको एज ए स्कॉलर आपको अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है किसी चीज के लिए भी। अगर आपका ये है पीएचडी चल रहा है, आपका थीसिस है, करना है, जरूरी करना है, टाइम है वो देना है, मगर अपनी फैमिली लाइफ, अपने पेरेंट्स, अपनी व्हाटएवर अपनी पर्सनल लाइफ उसको खराब नहीं करना है। सी देयर आर डिफरेंट गोल्स, वो भी एक गोल है, मगर आपकी जो पर्सनल लाइफ वो भी एक गोल है, आपके पेरेंट्स के साथ बात करना वो भी एक गोल है। if you are married you have to give time to your husband and to your children as well। तो ये डिलिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने सबको मिक्स अप किया ना then our life will go haywire and ultimately our mental health जो है that will get affected। डॉक्टर साहब अक्सर देखते हैं हम कि जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है एसोसिएटेड इस जॉब के साथ, जी जैसे आपने खुद भी कहा, तो अक्सर क्योंकि जब भी कोई आता है वहां से डॉक्टर एंड टाइम, तो कितना एक पेशेंट को भी समझना चाहिए कि एक डॉक्टर पे कैसा असर पड़ता है कि जब वो उसका ट्रॉमा सुनता है, बिकॉज इट इज इमोशंस आर कंटेजियस। आप किसी को स्माइल करते हुए देखो, आप खुद भी स्माइल करोगे, पता नहीं होती है, यू सी समवन क्राई बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर। तो कितना असर पड़ता है एक साइकाइट्रिस्ट के ऊपर भी कि जब वो पेशेंट आपके माने एक हिसाब से आपके ऊपर वो डाल देता है, अपने आप को वो फ्री कर देता है टू सम एक्सटेंट कि मैंने शेयर कर लिया। जी क्या असर पड़ता है जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं? जी जब हम ऐसी बात करें ना तो हमारे मेरे को दो लफ्ज याद आ रहे हैं, एक तो है सिंपैथी और देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पैथी। सिंपैथी यूजुअली हम दिखाते हैं किसी को कि जैसे चलो लेट मी टेक यू एज ए, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कुछ बोला तो मुझे सिंपैथी दिखाना कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। एम्पैथी तब प्रॉब्लम तब होती है जब आप एम्पैथी दिखाओ। एम्पैथी होता है कि आई विल ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन यूर शूज। वो थोड़ा सा वो चीज नहीं करनी है एक इंसान को, मगर कभी हो जाता है इंसान को जब बहुत सारे, मैं वही बोल रहा हूँ कि उतने ज्यादा स्ट्रेस है ना इंसान की जिंदगी में कि जैसे आपने खुद बोला कि वो हंस लेता है फिर आप भी हंस लेते हो, वो होती है आर्टिफिशियल स्माइल। जैसे मैं बहुत पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आई नीड अ स्माइल फ्रॉम इनसाइड। अगर जब वो वैसे आप हंस लो ना एक बार तो आई विल फील कि आई हैव डन जस्टिस टू माय जॉब एंड आई हैव रियली हेल्प्ड यू। यूजुअली पेशेंट आएगा वो बड़ा चुलबुला होगा मगर अंदर से वो बेचारा जल रहा होता है। तो वो मानो वो हैंडल करना थोड़ा हो जाता है कभी पेनफुल, हमें भी बहुत मुश्किल होता है, मगर थोड़ा रेजिलियंस तो कोशिश करते हैं हम दिखाएं ताकि हम पहले ठीक रहे, ताकि अगर हम ठीक रहे तो हम फिर जो हमारे पास हेल्प लेने के लिए, ट्रीटमेंट सीख करने के लिए आए तब हम उनको हेल्प कर सकेंगे। और यूजुअली हमारा एम क्या रहता है कि हम पहले ही अपनी जजमेंट नहीं दे देते हैं, कि हम जजमेंटल नहीं बनता कि कोई पेशेंट आ गया कुछ बोल दिया तो हम बोल देंगे कि नहीं ये फेक करती है या इसको ये तकलीफ है या इसको वो तकलीफ है। यूजुअली हम पहले ही कंक्लूड नहीं करते हैं कि होता ना कि देयर इज ऑलवेज अ सिक्स्थ सेंस ऑफ डाउट एज अ साइकियाट्रिस्ट। एक्चुअली दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ए पेशेंट, कि हमारे को लगता है कि मे बी पेशेंट को और भी कुछ होगा, ताकि उससे क्या होता है कि हम थोड़ा ज्यादा रीड कर पाते हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जितना हम एज अ साइकियाट्रिस्ट टाइम देते हैं पेशेंट को हार्डली और कोई डॉक्टर देता है। अगर मानो और हमारी वैसी कोशिश होती है ना कि अगर पेशेंट मानो दिल मलूल होके कैबिन में आए, कोशिश होती है हर एक डॉक्टर की, एटलीस्ट हम साइकियाट्रिस्ट की और बाकी डॉक्टर्स की एटलीस्ट मानो कि वो हंसते हंसते बाहर निकले। और मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलता हूँ, कभी वो हंस भी लेते हैं कि कभी उनको लगता है कि डॉक्टर के कि जो भी परेशानी है ना वो इसी चार दीवारी में रख दो, क्योंकि ये चार दीवारी को सहने की हिम्मत बहुत ज्यादा है, और आप कोशिश करो कि यहाँ से आप खुशी खुशी निकल जाए। Khalid bhai, over to you. Okay, so we have one more question from Dr. Sabha Andrabi. She is saying that
Is it normal if a teenager prefers friends or relatives? अगर ऐसा है, सी अगर ये वापस उसी बात पे आ जाती है कि देयर इज अ लैक इन पेरेंटिंग एंड देयर इज सम इश्यूज इन द फैमिली। मानो वो स्टेप लेना क्यों पड़ रहा है एक बच्चे को? रिलेटिव्स की भी बात ना करूं, मैं पहले पेरेंट्स की बात करूं। क्यों वो ऐसा बोल रहा है कि मैं पेरेंट्स और रिलेटिव्स को पसंद नहीं करता हूँ, फ्रेंड्स को कर रहा हूँ? क्योंकि ही फील्स वेरी हैप्पी, he feels very close when he talks to his friends as compared to his parents. तो वो कहीं ग्रॉस रूट में ही कहीं प्रॉब्लम है। if something like that is happening, there has to be some problem, and I will still not blame this child. I will blame his family, his relatives. There has to be some issues within. We have another question from Mir Blal. He's asking that other than psychiatric issues that are caused by occupation back home, what are the major causative agents of mental stress in Kashmir? And do you approach mental health issues caused by multiple reasons differently, or there's a standard master approach? See, अगर मुझे समझ आए ये सवाल, is it related to stress, this trauma, what is happening, turmoil? Yes, He's it's saying that related to that. one of the major causes of psychiatric issues is occupation. What are other causative agents of mental stress in Kashmir that you have जी, seen mostly जी। in your patients? नहीं, अगर हम if we talk about occupation, from last, वही मैं बोल रहा था कि पिछले एक साल से it's almost no lockdown, पहले वो आर्टिकल उसकी वजह से there were restrictions, जो इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ ना कि सबसे जो affected community है, that are poor fellow जो हैं, तो वो यही जो बस वाले हैं, जो टाटा गाड़ियां वाले हैं और जो सोमा वाले हैं, they were the last people who were allowed to start there, and still I think जो बस वाले और जो टाटा वाले उनको भी स्टार्ट नहीं करने दिया है। तो उनको तो डेफिनेटली दे आर यूजुअली हैंड टू माउथ उनका होता है कि सुबह निकलते हैं तो वो खाते हैं, वो कुछ कमाएंगे तभी वो खाएंगे, तो उसकी वजह से तो डेफिनेटली इश्यूज हो ही रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट अदर इश्यूज, हाँ डेफिनेटली जो कश्मीर में भी जो टर्मोइल चल रहा है फ्रॉम लास्ट आई थिंक 31 years से चल रहा है, डेफिनेटली generations have passed and this thing is continuously happening. अगर मैं बात करूं, I started my school when it was in 89 or 90. I went to Bisco school. तो कोई एग्जाम नहीं वैसा था कि जिसमें हड़ताल नहीं होती थी। I think from nursery till 12th or 10th, if I remember. तो मानो हमने वो चीजें देखी जो बाकी स्टेट्स में नहीं देखते हैं एक इंसान, कि हड़ताल, कत्ल गारत हो रहे थे, तो उसकी वजह से तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ता ही है। एंड देयर इज if a mental disorder and mental illness is occurring because of one stress or multiple stressors, usually we have same protocol, same management, मगर it depends कि कोई तकलीफ होती है उसको 2-3 मेडिसिन देनी पड़ती है, कोई तकलीफ होती है उसमें 1-2 मेडिसिन, या कोई तकलीफ होती है जिसमें 4-5 मेडिसिन भी देने पड़े, साइड बाय साइड साइकोफार्माकोलॉजी की जो हम काउंसलिंग यूजुअली मानो ब्रॉडर टर्म में ले लेते हैं, तो उसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सारा डिपेंड करता है, एक पेशेंट जब आता है हमारे पास, वो हम ऑन टेबल डिसाइड करते हैं कि क्या मैनेजमेंट चाहिए और काउंसलिंग कब एक पेशेंट पे फायदेमंद हो। There's another question from Zahida Kamri. As you have already discussed number of times and told us that there's a negative perception among our society also, among our patients also, to go to a psychiatric hospital for regular mental checkup. As you noted to this that it has not changed. So what needs to be done? For example, awareness, support, or at least to erase this taboo from our society. देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने खुद ही बोला, अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस रूट। जैसे मैंने बात की, डॉक्टर्स यूजुअली जो ये पेशेंट्स ये दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, I will not say they deliberately go to them,
उनको नहीं पता होती है। जैसे अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, पैनिक अटैक की बात करूं, उनको लगता है हार्ट अटैक होने का चांस होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को स्ट्रेस होता है तो उनको एब्डोमिनल अपसेट होता है, स्टमक, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। या किसी को पेन इश्यूज होते हैं जिसको रिलेटेड टू डिप्रेशन, जैसे मैंने बात की कि डिप्रेशन में भी पेन इश्यूज, तो ऑर्थोपेडिशियन है और किसी के पास चले जाते हैं। तो वो बात पहले वहीं पे आ जाती है कि एक डॉक्टर को रेफर करना चाहिए ताकि एक पेशेंट को आउटकम अच्छा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहीं दूसरी चीज है जो स्टिग्मा है, वो हमें समझना चाहिए कि एक पेशेंट अगर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, वो पागल नहीं है। एक साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्ट करने वाला एक पागल नहीं बन जाता है। ये डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, और ये इसमें पागल वही होता है जिसकी इंसाइट खत्म हो जाती है, जिसमें पेशेंट को नहीं पता होती है मुझे तकलीफ हो या ना हो। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो हार्डली 4 से 5% केसेस होते हैं जिसमें जिनको हम बोल सकते हैं पागल है। बाकी जो हम डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट है ओल्ड एज जो डिमेंशिया हम बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम सारे किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने बात की कि हम बाहर निकले, एक्सीडेंट देखा किसी ने, उसके सामने आंखों के सामने 2-3 आदमी गॉड फॉरवर्ड मर गए, तो वो इम्पैक्ट तो बहुत खराब पड़ सकता है इंसान को, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये साइकियाट्री इसी में महबूद नहीं रहती है, इट इज नॉट लिमिटेड टू एंजाइटी डिप्रेशन, इट हैज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। जैसे सबस्टेंस इश्यूज हैं, स्लीप इश्यूज हैं, सेक्सुअल इश्यूज है, सोमैटिक इश्यूज है, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज है। तो हम ये सारा डिलिनेट सीजर्स डिसऑर्डर से हम सारा हैंडल कर लेते हैं साइकियाट्रिस्ट। और अगर ये थोड़ा हम सोसाइटी में भी समझाए एक इंसान को कि ये तकलीफ होना, और अगर आप ट्रीटमेंट सीख करते हो, दैट डजंट मीन कि यू हैव बिकम मैड, यू हैव बिकम इनसेन। दिस कैन हैपन टू एनी पर्सन। अगर ए आज पेशेंट है, बी और सी भी कल और परसों पेशेंट बन सकते हैं। और कोई भी नॉर्मल इंसान, ये नहीं है कि कोई आउट ऑफ ब्लू अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट जनरेशन या कोई अलग स्पेस से एक साइकियाट्रिक पेशेंट को बनाया है। वो भी माँ के पेट से ही पैदा हुआ है, उसके बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो ठीक होते हैं, इसी को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है जहन की, तो उसको जब ट्रीटमेंट करा ले तो अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। मगर हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले पीर फकीर के पास लेके जाए, या हम और किसी डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर वो डॉक्टर बोलेगा भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, वो हम बोलेंगे तू क्या वन बस पागल, मी मोह छस पागल या मोह बुआ छस पागल, भाई ठीक सुबह से ठीक मानो, they take to it, they take these things to their heart and they feel offended because of this. मगर अगर ये चीज नहीं हुई तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होगी। और what I feel, alhamdulillah, patients are accepting now this is a problem. और अगर आप कभी हॉस्पिटल में आए, या जहां पे मैं प्राइवेट देखता हूँ शिफा हॉस्पिटल में, आई सी अल्हम्दुलिल्लाह गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट, और उसमें हार्डली, जो मैं बोल रहा हूँ ना पागल जो बड़ा सा टर्म लगा के है, हार्डली 2-3 पेशेंट्स होते हैं अगर मैं 20-25 पेशेंट देखता हूँ दिन में। तो इसका मतलब मेरा बोलने का है कि बहुत ही कम परसेंटेज है, तो उसका टेंशन ना ले। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास आना भी है, डोंट फील ऑफेंडेड, डोंट फील बैड, डोंट फील लो, and don't feel that you have become inferior to someone else. जी. So, Doctor, we have one more question from Dr. Zahoor Ahmed. He says that one of the important things that's happening these days is that people have a very long friend list on social media. And once they come out of social media, they feel that it is just a fairy tale. And this is most prevalent these days. So how can you, what are your suggestions to tackle this kind of problem? जी, दिस सोशल मीडिया, वो तो हमें पता ही है कि दिस इज दैट ट्यूबलाइट जैसा दुनिया बना के रखी है ना, कि देयर आर एंड वी ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर फ्रेंड्स, ताकि वी फील वेरी हैप्पी, एंड देन वी विल पुट पिक्चर्स ऑन दैट कि वी हैव बीन टू दिस प्लेस, वी आर हैविंग, बहुत सारे डिफरेंट चीजें बन गई है। जैसे कोई भी चीज कर लेते हैं ना, तो वी विल पुट इट ऑन सोशल मीडिया, हैविंग अ कप ऑफ टी और having snacks, having this. Usually जो ये patient, जो I will not
say everyone, but I will say most of them, they are usually not happy inside, and they are just narcissistic type of person जो अपने आप को ना बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करे, और उसमें वो जेलसनेस एनवीनेस का भी पार्ट आ जाता है कि पेशेंट फील्स नो कि अगर मैं ये डालूंगा तो दूसरे जल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें अल्टीमेटली जो दोस्त होते हैं ना वो असल में कुछ ही होते हैं, और वही दोस्त होते हैं जब आपको जरूरत पड़े ना वही दोस्त आएंगे। जो ये सोशल मीडिया है ना, इंटरनेट बंद हो जाता तो सोशल मीडिया भी बंद हो जाता है, तो जो रियल दोस्त है ना वो आपको घर आ जाएंगे जब कोई प्रॉब्लम हो। तो वो चीजें हमें समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया इज ए फेरी टेल, दैट इज नॉट ए रियलिटी। व्हाट रियलिटी इज, जो है आपके हाथ में जो 2-3 दोस्त हैं आपकी सोसाइटी में, व्हाटएवर जहां पे भी हो, वही आपके दोस्त है। मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग ए ह्यूज फ्रेंड लिस्ट ऑन आवर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, Insta, whatever, different things. These are not the people who will come to help you, or when you need them, they will be there for you. They are not the people who will be there. ठीक है? We need to delineate and we need to know, put a margin जहाँ पे हमें समझ आए कि क्या सही है और क्या गलत है। That's how we'll take the last question before we wind up this session. The question is from Saeed Mubarak Hussain. He's saying that what's your suggestion in particular to students who are preparing for cutthroat competitions, for instance, NEET, IIT, JEE? How can parents, friends, and teachers help these students overcome anxiety, stress, and diseases? For example, those associated with stress, such as IBS. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं पहले स्टूडेंट्स के बारे में बोलूं, उनको उनके रिलेटेड मैं बोलना चाहता हूं, उनको मैं बोलना चाहता हूं। I'm sorry to interrupt you. There's another question which is closely related to this question. Tausif Ahmed is asking a question that please also share some tips for students who have suffered much in their education and are getting depressed day by day. जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं स्टूडेंट्स को ही मैं बोलना चाहूंगा ये कि we should not get disheartened. जैसे अभी पीजी के लिए, सॉरी जो एमबीबीएस के लिए जेई जो भी बोल रहे हैं आप, चल रही प्रिपरेशन, इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू क्रैक, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उतना फिक्स मत रखो कि अगर मैं नहीं तो मैं आगे जाके क्या करूंगा। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट थिंग्स विच यू कैन वेयर यू कैन एक्सेल एंड वेयर यू कैन प्रॉस्पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अपने आप को उतना महदूद ना रखो कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं तो अपने आप को कुछ भी कर दूंगा, अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा फिर आगे जाके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। अगर दूसरा है कि पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट पुट सो मेनी थिंग्स इनटू योर चाइल्ड, कि एक्सपेक्टेशन की लेवल उतना ना रखें कि वो दे विल ब्रेक डाउन। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना एवरीवन इज ए डिफरेंट एंड इज हैविंग ए डिफरेंट पर्सनालिटी इज altogether different from one another, तो अगर एक इंसान एक चीज में अच्छा है तो दूसरा इंसान दूसरी चीज में अच्छा होगा ही होगा। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि कभी कंपैरिजन ना करें। यूजुअली हमने देखा है कि अगर भाई 10th में पोजीशन लाता है तो जो छोटा भाई है उसको पहले, या बहन होती है उसको पहले से कर देते हैं, बनी हुई ट्रेंड पास फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो वो बेचारा मानो उतना उसकी मेंटल कैपेबिलिटी होती नहीं, ही इज नॉट दैट ग्रेट, ही इज नॉट दैट जीनियस, ही इज नॉट दैट हार्ड वर्किंग, मगर ही इज गुड इन अदर थिंग्स। अगर वो हम करें ना जिस चीज में वो ठीक है उसको में हम उसको ज्यादा हेल्प करें, प्रॉस्पर करने की पुश करें और उसको सपोर्ट करें सो दैट ही विल फ्लोरिश, उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका हिडन टैलेंट है दैट विल कम आउट एंड ही विल बिकम ए बेटर पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को, अगर हम बच्चों के माध्यम से मैं उनको मैं बोलूं कि कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड स्टडी, ठीक है, जितना आप में कैपेबिलिटी है और जो आपका काम है, योर ओनली वर्क इज टू स्टडी एंड यू हैव टू, जैसे हम बोलते हैं ना कि यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, वो करें। बाकी रेस्ट कीप टू गॉड, बिकॉज गिव सम, जैसे मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलता हूँ, गिव सम वर्क टू अल्लाह ताला, गिव सम वर्क टू अल्लाह, हमारा ऑलमाइटी, बिकॉज ही इज देयर, ही हैज केप्ट एवरीथिंग फॉर ए पर्सन। अगर हम
खुद ही सब कुछ कर लेना तो फिर अल्लाह ताला का काम क्या है, वो भी सोचेगा कि मेरा काम क्या है फिर अगर मैं ही सब कुछ प्लान करूंगा। तो जो बच्चों का है तो he should study well, he should put everything, he should put every effort so that he will do well। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। दूसरा है कि पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनको बच्चों को थोड़ा कंफर्ट जोन में लाना है कि अगर तुम बच्चों ये नहीं कर पाओगे दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये मैसेज आएगी ना बच्चों के पास तो दे विल फील रिलैक्स्ड एंड दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड once a person is relaxed and comfortable, dividends and results are better। तो ये चीजें हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज डोंट कंपेयर बिटवीन योर चाइल्ड्स बिकॉज both are different and both will be great। Thank you so much, Dr. Saab, for being with us today. It has indeed been a privilege to hear you, and I'm hopeful that there will be many people who will be who would have listened to you today and might have at least this talk would have been beneficial to them. And to all our people on JK Scientists or others who will watch these videos on our different platforms, if you have any questions, please feel free to contact us and comment on our series as well. We will forward our queries to Dr. Junaid Sahab as and when we receive them. On behalf of JK Scientists, I once again thank you, Dr. Saab, for being with us. I also thank Saima Baig, the moderator of this session. Saima is a member of JK Scientists, and she has helped us organize this series in particular. I also thank organizers of this event on behalf of JK Scientists, who include Asif Bakshi, Dr. Zahoor, and Dr. Jameel. And for our other people who have joined us today, I once again thank you. Please feel free to contact us via our email or on our JK Scientists platform for your suggestions and feedback. Thank you so much once again, Dr. Junaid. Thank you so much for giving me an opportunity over here, and I gave my views. Thank you so much for having me here. And I will talk about my great friend Tasim. He was planning to be a moderator, and Yes, I pray that he unfortunately, yes, I pray that he gets well soon. Actually, he has been a great friend from my school itself. Dr. Tafeel is a core member of JK Scientists, but unfortunately, he and his family are not well. We pray that may Allah cure their illness very soon. Inshallah. He will be with us in our next sessions, inshallah. Thank you so much, Dr. Junaid, and thank you so much, Samadi. Thank you so much. Assalamu alaikum.